है और एक लड़का है। क्या करेंगे भाई, गरीब आदमी लगे रहते हैं यही। एक लड़का है मेरा एक ही, उसको थैलेसीमिया है, उसको भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, सारी तरफ देखना ही पड़ता है। का बेटा एक 7 साल का ना, उसको थैलेसीमिया की बीमारी है, उसका इलाज भी चलता है। कहाँ पर चलता है, कितना खर्चा आ जाता है महीने का? महीने का 4-5 हजार रुपये का तो दवाई हो जाता है। बोलते तो कई जने होंगे ना आपको, जैसे आप बेटी आपकी है ना स्टंट करती है ऐसे ना रस्सी पे है ना, तो बोलते तो होंगे कई लोग आके कि भाई तू बच्ची से क्यों करा रही है ये है ना, बाल विभाग वाले भी आते होंगे। क्या करे भाई, सब बोलते हैं, सबकी गाली सुनना पड़ता है, मगर गरीब को गाली देना आता है, लेकिन किस मदद करने का कोई नहीं होता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਧੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਟੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪ? छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो। तो परिवार में आपके 3 बेटियां हैं, कितने कितने साल की हैं और बेटा कितने साल का आपका? लड़की बड़ी 12 साल की है और उसके बाद की लड़की है वो 9 साल की है और 7 साल का लड़का है और एक 2.5 साल, एक और आधा साल की लड़की है। 1.5 साल की लड़की है। 3 लड़की है और एक लड़का है। क्या करेंगे भाई, गरीब आदमी लगे रहते हैं यही काम पर। और एक लड़का है मेरा एक ही, उसको थैलेसीमिया है, उसको भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, सारी तरफ देखना ही पड़ता है। क्या करे, 400-500 रुपया मिल जाता है दिन भर में, इतने में गुजारा, सब पेट भी पल जाता है और डॉक्टर का भी काम हो जाता है। जैसे आपने बताया कि आपका बेटा एक 7 साल का ना, उसको थैलेसीमिया की बीमारी है, उसका इलाज भी चलता है। कहाँ पर चलता है, कितना खर्चा आ जाता है महीने का? महीने का 4-5 हजार रुपये का तो दवाई हो जाता है उसकी। हाँ, टैक्स वगैरह, दवाई सारा कुछ करके हो जाता है। किराया भी लगता है ना इधर से उधर जाने के लिए, उसमें हो जाता है। इलाज कहाँ चल रहा है उसका? डीएमसी लुधियाना। बहुत अच्छा है वो भी।
वो डॉक्टर भी बहुत अच्छा है और खून भी फ्री मिलता है। अब क्या करे, आधा तो सरकार करती है और आधा अपनी तरफ से करते हैं, फिर भी उधर अपनी तरफ से करने के लिए भी कितने पैसे लग जाते हैं महीने के? दवाई खर्चा हो गया, टेस्ट वगैरह हो गया, कितना खर्चा लग जाता है? ये लग जाता है 4-5 हजार रुपया आराम के साथ लग जाता है। हर महीने खून लगाना पड़ता है ना, हर महीने जाना पड़ता है, हर महीने दवाई लगानी पड़ती है। महीने में 10 दिन में, महीने में 20 दिन में, फिर 20 दिन के बाद जाओ, 30 दिन के बाद जाओ, 25 दिन के बाद जाओ। जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है। तो वो खर्चा कैसे उठाते हो आप? जैसे 5,000 रुपए तो आपने बता दिया कि उसकी दवाई खर्चे के लिए चलता है सारा, है ना? तो उसके अलावा भी घर का खर्चा है, बेटियां हैं 3, है ना? रोटी पानी भी चलाना है, आना जाना भी है, तो कैसे चलता है? क्या करे, चलाते हैं गरीब आदमी, अब क्या करे, कैसे भी करके चलाते हैं। ये बेटी को सिखाया कैसे आपने? जैसे 12 साल की इसकी उम्र है ना, ऐसी उम्र में तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आपने सिखाया कैसे इस बच्ची को इस तरह? नहीं, बांस छोटा करके सिखाए। कितना समय लग गया था सिखाने के लिए भी बच्ची को? 2-3 महीने लग गए। 2-3 महीने। पहले हम भी करते थे भाई, हम भी करते थे, फिर हम ये भी, इसको भी लगा दिया। तो बच्ची ने आप कहा था कि भाई मैंने सीखना है ये है? नहीं नहीं, बच्चे क्या कहेंगे। देखते हुए हाँ, हाँ। कि उस बच्ची ने फिर खुद क्या था कि आपको देखकर कि भाई मैंने? बच्चे भी पूरा कहते हैं कि हम खेल दिखाएंगे, पढ़ेंगे भी और खेल भी दिखाएंगे, दोनों तरफ सही हो जाता है। तो घर वगैरह चल रहा है बढ़िया या मतलब कैसे चल रहा है? क्या करेंगे, नहीं चलेगा, फिर भी चलाना पड़ता है भाई, क्या करें। तो बच्चियां पढ़ती वगैरह भी है कहीं पर जा? स्कूल में नहीं, ऐसे ही घर पे ही, घर पे हम पढ़ाते हैं। लड़की के लिए हाँ। उतरीदा। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, किस तरह जाते हैं? बस में जाते, बस में जाते हो? सुबह 6 बजे जाते हैं और 8 बजे डॉक्टर पे चले जाते हैं और दिन भर तो उधर ही सारा काम होता है। फिर 5 बजे बस पे चढ़ते हैं और रात हो जाता है, घर आते आते 10 बज जाती है रात। तो आपके साथ यहाँ कौन कौन होता है बेटियों के अलावा? जैसे बेटा है, बेटा कहाँ पे है फिर अभी? जुग्गी में है, कौन सी जगह? मंडी। मंडी में। फिर सोते कहाँ पर हो आप? जैसे घर तो आपका छत्तीसगढ़ में है ना, तो यहाँ पे जुग्गी में ही सोते हैं। यूपी में हाँ कोई मतलब कि बोलता बालता नहीं वहाँ पे कि भाई यहाँ पे योगी क्यों लगाई है तुमने? हाँ, बोलते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई 2-4 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। अच्छा। जिसकी मर्जी रहती है वो कहते हैं रह जाओ, जिसकी मर्जी नहीं रहती वो कहते हैं चले जाओ, कहते हैं तो चले जाते हैं। अच्छा। तो मतलब बोलते तो कई जने होंगे ना आपको, जैसे आप बेटी आपकी है ना स्टंट करती है ऐसे ना रस्सी पे है ना, तो बोलते तो होंगे कई लोग आके कि भाई तू बच्ची से क्यों करा रही है ये, है ना? बाल विभाग वाले भी आते होंगे, क्या सरकारी अफसर। क्या करे भाई, सब बोलते हैं, सबकी गाली सुनना पड़ता है, मगर गरीब को गाली देना आता है, लेकिन किस मदद करने का कोई नहीं होता। बस बोलेंगे ये करो, फलाना करो, ढिकाना करो, ऐसे कहेंगे, लेकिन उसकी मजबूरी नहीं समझेंगे। मतलब मजबूरी कोई नहीं समझता ना कि भाई क्या मजबूरी है कि बेटे का इलाज करवाना, वो कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता। तो आपके पास सरकारी अफसर भी आते होंगे जो बच्चे पकड़ते हैं, है ना? वो भी टीमें आती हैं? आती है। कभी हुआ ऐसा कि पकड़ के ले गए? होता है, ले जाते हैं, बोलते हैं कि ये काम मत करवाओ, नहीं तो अनाथ आश्रम में डाल देंगे, ये कर देंगे। अच्छा। भाई अपनी लड़की है,
अपने कैसे भी गुजारा करके तो पाल तो रहे हैं। मतलब मेहनत तो कर रहे हो आप। मेहनत तो करे, क्या ये मेहनत वाला काम नहीं है? ये भी तो मेहनत ही है। ये जैसे बच्ची करती है ना सबसे बड़ी वाली, इसके अलावा भी कोई करता है यहाँ पे? नहीं नहीं, यही है। नहीं, यही। आपने कितने साल किया है? मैंने तो ये कम से कम 14 साल तक किया था मैंने। आपने? हाँ, 14 साल तक किया था। तो इसके अलावा भी आप कोई काम करते हो, मजदूरी वगैरह या दिहाड़ी वगैरह? मेले उला हो जाता है कहीं पर तो वो बजाने वाला होता है ना, वो बेचते हैं, गुब्बारे बेचते हैं, और कान के नाक के वो बेचते हैं, झुमके वगैरह? झुमका वगैरह वो बेच लेते हैं। खेल भी दिखाते हैं और आधे आदमी सामान भी बेच लेते हैं। तो जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? क्या करें अब, कैसे भी कोई आसान नहीं है भाई, क्या करे, ये कोई आसान वाला काम नहीं। जैसे छोटी बच्ची है ना, 1.5 साल की है, वो तो खेलने कूदने की उम्र अभी उसकी है ना, कि माँ के साथ रहती है, तो दिक्कत नहीं होती कि भाई इसको साथ में लाते हो ऐसे, है ना, अभी तंग वगैरह करती हो? नहीं नहीं, अपना बच्चा क्यों दिक्कत होगा। नहीं, तंग वगैरह करती हो कि मुझे खिला? नहीं नहीं नहीं, नहीं करती। तो अपने आप वो खेल रही है, वो उसका खेल का सामान देख लो। जैसे बच्चे है ना दूसरे बच्चों को देखते हैं कि खेलते हुए, या उसको खाते पीते देखते हैं ना, तभी कोई ऐसी कहा हो कि मुझे वो खाना है ना, कि वो तो अभी बोल ही नहीं रही है, अभी बोलती नहीं। दूसरे बच्चे नहीं, अपनी मजबूरी सब समझ लेते हैं तो क्या बोलेंगी। अपनी मजबूरी सब बच्चे जानते हैं भाई, हमारी ऐसी ऐसी हालत है तो हम माँ के पास क्यों जाए, उनको पता है ना। जैसे कई लोग आपकी पहले भी वीडियो बना के लेके गए होंगे ना, आपने देखी होगी कि भाई लोग गालियां भी निकालते हैं ना, तो बुरा लगता है उस चीज के लिए कि लोग गालियां निकाल रहे हैं? लगेगा ही, नहीं लगेगा? गाली किसी को भी बिना फालतू से गाली देंगे या बुरा बोलेंगे, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसके अंदर की उसकी पीड़ा क्या है उसको जानेगी ही नहीं, और ऊपर ऊपर से गाली दे के भाग गए। उसका कोई नहीं जाता ना भाई, जो गरीब है वही समझेगा, और जिसके पास दर्द है ना वही जानेगा, ऐसे वैसे कोई नहीं जानेगा। आप पंजाब में कब आए थे छत्तीसगढ़ से? 1 महीना हो गया। 1 महीना? तो 1 महीने में कहाँ कहाँ गए फिर? इसके पहला पटियाला से पहला कहीं गए थे? और नहीं, गांव में भी जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, अमृतसर की तरफ जाते हैं, पटियाले की तरफ जाते हैं, सारी जगह घूमते हैं भाई हम लोग तो। पहले छत्तीसगढ़ में भी करते थे? हाँ, ਆਦੀ ਨੇ ਹਾਲਾ ਮੈਕਲਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਧੀਆਂ ਨੇ। 3 ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 5 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੁਗਾੜੀ ਰੇੜੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਟ ਹੈ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ, ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਇਸ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਧੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 500 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਲਜੀਤ ਕੰਬੋਜ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਪਟਿਆਲਾ।